Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. So stay at your home, be safe and be healthy. Yes dear kids, I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. And in the previous video we have to started the 7th class 2nd chapter atmosphere. And in the previous video we have to discuss about the composition of the atmosphere. So atmosphere we can say that the mixture of many gases. Atmosphere is the mixture of many gases. So in it so many gases are present, but main gases are the nitrogen, oxygen and carbon dioxide. So these three are the main gases. So today we have to start at the structure of the atmosphere. Nowadays systematic knowledge about the atmosphere is made available by the रेडिएटर्स और the satellites. रेडिएटर्स मतलब satellites के थ्रू हमें एटमॉस्फेयर की पिक्चर्स लेते हैं और वी हैव टू नो अबाउट द एटमॉस्फेयर एट विच लेवल, विच टाइप ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट और द नॉट. सो द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर वेरी नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. कहते जो एयर की डेंसिटी है वो चेंज है. That would be the change, not only place to place but season to season also. So atmosphere has a layered structure. Each layer has a different characteristics. Upper layer press down the lower layers and upper layers are less dense than the lower layers. Means हर एक लेयर की अपनी characteristics है, अपनी उसकी advantages हैं, features हैं उसकी, और जो upper layer है वो lower layer को ज़्यादा press करती है. So जो lower layers हैं वो ज़्यादा dense है as compared to the upper layer. So it is estimated that about 90% of the total mass of the atmosphere lies within the height of 20 kilometer from the earth's surface. कि जो 90% हमारा टोटल एटमॉस्फेयर का मास है वो हमें जस्ट मिल जाता है ओनली 20 किलोमीटर. अर्थ सरफेस से जब हम अपर साइड 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो मोस्टली हमारी जो गैसेज है वो हमें मिल जाएंगी. सो द टोटल एक्सटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर के बेस पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पर we have to divide the Earth's atmosphere into 5 layers. Into how many layers we have to divide it? 5 layers. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Troposphere हम कह सकते हैं lowest, then stratosphere, mesosphere, thermosphere and the exosphere. So in today's video we have to discuss about the troposphere and the stratosphere. So let's start. Troposphere. This is the most important layer of the atmosphere. सबसे ज़्यादा important है. It is lowest and the densiest layer. Lowest है और layer की जो air की density है वो भी हमें इस layer में बहुत ज़्यादा मिलती है. The height of the troposphere varies from 8 kilometer at the poles to about 18 kilometer near the equator. Equator के near इसकी height है 18 kilometer तक और poles के ऊपर इसकी height है just only 8 kilometer. So about 3/4 of the total mass of the atmosphere is found in this layer. 3/4 part है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो हमें जस्ट ट्रोपोस्फियर में मिल जाता है. So why this layer is the important? Because the air which we can breathe is available only in this layer. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, in which layer oxygen is the present, that is that layer. In this layer the temperature of the air decreases with the increase in the height. इसी लेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे वी हैव टू गो द हाइट. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज. ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वेदर फिनोमिना जस्ट लाइक रेनफॉल, फॉग, क्लाउड्स, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. कहते जो सारे वेदर फिनोमिना, क्लाउड्स बनना, रेनफॉल होना, फॉग पड़ना, हेल स्टॉर्म्स होना, सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं. वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आल्सो इन वाटर वेपर प्रेजेंट है क्योंकि वेदर फिनोमिना इसमें है. सो दिस लेयर इज हीटेड मोर फ्रॉम द बिलो देन द अबव. ग्राउंड के पास इस लेयर में हीट ज्यादा है
जैसे जैसे अपर जाते जाएंगे तो जो उसका टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा. सो द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज. जो इस लेयर की अपर पार्ट है उसके आगे स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. सो नेक्स्ट एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर. दिस लेयर लाइज अबव द ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज के ऊपर है and extends up to the height of 50 किलोमीटर from the sea level. और sea level से इसकी हाइट है 50 किलोमीटर. ट्रोपोस्फियर की थी 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स. सो इसकी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50 किलोमीटर है. द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज मोस्टली कॉन्स्टेंट. यानी जो टेम्परेचर है ट्रोपोपॉज के जो आसपास एरिया है वहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और उसके बाद वो चेंज हो जाता है. द एयर इज जनरली थिन, कोल्ड एंड ड्राई. थिन है, कोल्ड है और ड्राई है. स्ट्रॉन्ग विंड्स नॉन एज द जेट स्ट्रीम. कहते जो तेज हवाएं चलती हैं उन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं. बिलो हॉरिजेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दिस लेयर. वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ ब्लो करती है हॉरिजेंटली फॉर्म में. सो स्ट्रेटोस्फियर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेरियस वेदर फिनोमिना. स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी हमारा वेदर फिनोमिना नहीं होता. सो इट इज फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना. सो द लोअर पार्ट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. लोअर पार्ट में कोई भी वाटर वेपर नहीं है, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है. सो दैट पार्ट स्ट्रेटोस्फियर इज आइडल फॉर फ्लाइंग द जेट एयरक्राफ्ट. वी कैन से दैट फॉर द एरोप्लेन्स. एरोप्लेन्स के लिए जो हमारी ट्रोपोस्फियर है दैट इज द बेस्ट लेयर, वी कैन से दैट. एंड द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज द स्ट्रेटोपॉज. जो इसकी अपर लिमिट है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज. सो नेक्स्ट इज what is one more important feature of this layer, that is the significant feature of the stratosphere is the presence of ozone layer in its lower part. इसके lower part में ozone layer present है. Ozone layer is very useful for the human beings. It absorbs the harmful ultraviolet radiations that are coming from the sun. जो sun से हमारी harmful ultraviolet radiations आती हैं उनको वो ऑब्जर्व करती है ओजोन गैस. सो देयरफॉर दिस ओजोन लेयर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. जो ये ओजोन लेयर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल इसकी वजह से ही है. साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर. जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो थिकनेस है हमारी ओजोन लेयर की वो डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है. व्हाई? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. कि जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी इंक्रीज हो रही है उसके कारण जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है डे बाय डे ईयर बाय ईयर इट वुड बी द डिक्रीज. वो डिक्रीज हो रही है. सो ओजोन लेयर डिक्रीज हो रही है देन इट्स द डेंजर फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. जो अर्थ के ऊपर लाइफ है उसके लिए वो वेरी हार्मफुल indication है. because ozone gas is the one gas that is present in the earth atmosphere that absorb the harmful ultraviolet radiations that are coming from the sun. सिर्फ ओजोन गैस ही है जो सन की तरफ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए. इफ दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीच अप टू द अर्थ सरफेस इट विल क्रिएट सो मैनी हार्मफुल डिजीज. तो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल डिजीजेस हो सकते हैं. सो वी हैव टू प्रिजर्व द ओजोन लेयर. हमें ओजोन लेयर को सेव करना होगा. सो दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर, इंपॉर्टेंट लेयर. सो इन टूडेज वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टू लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. वन इज द ट्रोपोस्फियर एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रेटोस्फियर. होप all the students have watched the video carefully and try to do the assignment that is assigned to you. So take care. Bye bye.